Hello everyone, welcome to Nature Fit Doctor series. So every week we connect with a doctor and discuss various aspects of every health problem that we face. So today we have Dr. Snehal Sonole. She is an Ayurvedic practitioner and a certified Garbhasanskar consultant. She is having 7 years of experience. She has done masters in clinical research and diploma in emergency medical services. Her expertise is in digestive disorders, joint disorders, psychological, gynecological problems, lifestyle disorders and many more. Currently, she is the former and chief Ayurveda consultant at Samyak Ayurveda in Airoli, Navi Mumbai. Also, she is conducting practical and online sessions for Garbhasanskar. So, welcome ma'am to the Nature Fit Doctor series. Today we have a very interesting topic coming up, that is understanding digestive disorders. This is a very common problem that we all face. So today ma'am is going to give us some valuable insights about the problems as well. So the first question is, what are some common digestive disorders that people frequently encounter? Yes. Thank you, Risha, for the introduction and thank you Nature Fit for inviting me here. So आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की. सो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाइड करने जाएं तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दो इसमें क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट दे आर सडन इन ऑनसेट, वो बहुत कम टाइम में आते हैं, सीवियर होते हैं और बहुत सिंपल ट्रीटमेंट से वो ट्रीट हो सकते हैं. एंड इन कंपैरिजन जैसे कि होता है चेस्ट बर्न, chest pain, abdominal pain, nausea, vomiting, constipation, all these are acute. And chronic diseases requires a longer period of time to develop. They require obviously the long period of treatment and they are deep rooted. Okay, that's really great. That was really helpful because none of us, I don't think many of us know that acute and chronic bhi hota hai in digestive disorders. So moving forward to the next questions, can you explain the underlying causes and symptoms of these disorders? Like what are the common symptoms? Yes, there are so many symptoms, like as I have already explained, chest burn है, pain in abdomen है, कभी कभी stomach pain, constipation, diarrhea, nausea, vomiting, all these are the common symptoms. Okay. And what are the causes? Causes is सारी की सारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पेट से शुरू होती है, पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती है. सो मील इज द मेन. improper meal, packed and junk food, preservative added food, improper meal timing, जब भूख लगी है तब खाना नहीं खाना, improper water consumption, these are the main causes. Apart from this, lack of exercise, unorganized lifestyle, and eating more amount of excessive amount of tea, coffee, maida preparation, bakery products, ईटिंग नॉन कॉम्पैटिबल फूड आइटम्स लाइक जैसे कि हम नॉनवेज के साथ कभी दूध दही ले लेते हैं, कभी कभी हम तुरंत गर्म खाने के बाद ठंडा ले लेते हैं. सो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स. राइट. सो बेसिकली आई थिंक कि देर आर सम थिंग्स कि थोड़ा बहुत चेंज कर लिया तो काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हम अवॉइड कर सकते हैं. इनफैक्ट देर आर सम थिंग्स जो हम unknowingly करते, that causes problems in our body as well. Yes. So, and sorry for the interruption. Symptoms में मैं और थोड़ा सा IBS को elaborate करना चाहूंगी. So IBS comes under the chronic digestive disorders. IBS is irritable bowel syndrome. इसमें क्या होता है, पेशेंट को अर्ज रहती है स्टूल पास करने की. सो पेशेंट frequently passes the stool like 7-8 times or 15 to 20 times. The stool is sticky, unformed stool, unsatisfactory, and whenever the patient feels stress or in anxiety, he or she have the urge to pass the stool. उसमें कभी कभी स्पाज्मोटिक पेन भी होता है. सो ये सारे जो सिम्टम्स है ये IBS के होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो कोई डिसीज या डिसऑर्डर उनको है और वो समझते हैं कि ये मेरा रेगुलर पैटर्न है फॉर पासिंग द स्टूल. सो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है और ये कंप्लीटली हील होता है. पेशेंट कैन रिकवर फ्रॉम दिस डिसीज. और बहुत सारे अदर क्रॉनिक डिसीजेस है जैसे कि
पेप्टिक अल्सर हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंटेस्टाइनल टीबी हो गया, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, ये सारे क्रॉनिक डिसीजेस जो है इनके उस हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स हैं। राइट आई मीन जो छोटे छोटे साइंस हम इग्नोर करते हैं उसकी वजह से वी गेट लाइक द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट? सो आई थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स मोर इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड। जो हमारा लाइफस्टाइल वगैरह है वो चेंज करने से आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ. So the next thing is how can, like, what are the treatment options available for people for all of these disorders? Yes, Risha. So coming back to the treatment options, so there are acute जो diseases होते हैं उनके लिए simple remedies है, जैसे कि उनका onset भी कम time period में होता है, तो वो simple हमारी kitchen जो है वो हमारी बहुत अच्छी pharmacy है, तो वहाँ पे अवेलेबल जिंजर है, लेमन है, ब्लैक पेपर है, और ये सब कुछ चीजें जो है, ये पुदीना है, ये सब कुछ चीजें जो है ये छोटी प्रॉब्लम्स को हील कर देती है. हाँ, ऑब्वियसली अगर ये बहुत दिनों से है प्रॉब्लम तो इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है. देन जो नेक्स्ट रहता है वो है क्रोनिक डिसऑर्डर्स. तो क्रोनिक डिसऑर्डर्स के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना विद आयुर्वेदिक कंसल्टेशन ये जरूरी होता है. सो उसमें अलग अलग तरीके की बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स होती है. आयुर्वेदा में पंचकर्म का वर्णन आया है जिसमें वमन, विरेचन, नस्य और बस्ती, ये जो ट्रीटमेंट्स है ये हम इसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं. वमन मतलब आपको मेडिसिन देकर वोमिटिंग जो है, थ्रू वोमिटिंग आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकाले जाते हैं. विरेचन मतलब थ्रू स्टूल टॉक्सिन्स बाहर निकाले जाते हैं. नस्य मतलब 2-2 ड्रॉप्स आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स में डालना, जो कि नर्वस सिस्टम से जब डिसऑर्डर कनेक्टेड होता है तब वो बहुत काम में आता है. एंड बस्ती मीन्स मेडिकेटेड एनीमा, उससे आपका विटिएटेड वात जो है वो बैलेंस होता है. ये सारी ट्रीटमेंट्स यूज करके और कुछ मेडिसिन यूज करके क्रोनिक डिसीजेस भी कंप्लीटली फ्रॉम द रूट कॉज हम हील कर सकते हैं. और ये सारी ट्रीटमेंट्स में से बहुत अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो हमारे यहाँ सम्यक आयुर्वेदा में अवेलेबल हैं. जो जिन लोगों को ये टाइम प्रोसीजर के लिए नहीं मिलता है, जिनका थोड़ा सा फास्ट शेड्यूल है, उनके लिए लघु वमन, लघु विरेचन और मात्रा बस्ती ये भी अवेलेबल होता है, जो एक दिन की प्रोसीजर होती है जो वो घर पे ही कर सकते हैं. सो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. दैट्स रियली ग्रेट. आई मीन आपने काफी ज्यादा ऑप्शंस बता दिए जितने हमें पता भी नहीं थे. इनफैक्ट द फैक्ट दैट आयुर्वेदा इज जस्ट नॉट अ ब्लेसिंग फॉर द वर्ल्ड बट फॉर आवर हेल्थ इन पर्सनल एज वेल. देयर आर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अभी आयुर्वेदा को ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उसके रिजल्ट्स की वजह से. यूजुअली कैसा होता है, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल वी जस्ट गो इनटू द मेडिकल और हम ले लेते हैं कोई भी मेडिसिन. बट आई थिंक थोड़ा सा अगर अपने बॉडी को टाइम दे दिया तो इट हील्स प्रॉपरली फ्रॉम द रूट कॉज, राइट? And the next question is, how can individuals on their individual level, how can they be proactive in maintaining their digestive health? Yes, that's a good question. कि हमने ये तो देख लिया कि क्या प्रॉब्लम होते हैं और कैसे ट्रीटमेंट है, लेकिन हमें अगर उसमें जाना ही नहीं है, सो आयुर्वेदा ने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये ऑलवेज बताया है. सो प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे सबसे पहला है जो मैंने पहले कॉजेज बताए हैं, वो सब कुछ नहीं लेना है. देन नेक्स्ट स्टेप इज आप खुद को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर मील लो, प्रॉपर टाइम पे लो, और वाटर कंजम्पशन जो है वो भी प्रॉपर रखो. उसके लिए मैं एक श्लोक बताना चाहूंगी. सो अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम. मतलब इसका मतलब ये है, अजीर्णे मतलब जब इंडाइजेशन होता है तो पानी जो है, ल्यूकवार्म पानी, ये हमारे लिए दवाई जैसे काम करता है. जीर्णे वाली बलप्रदम मतलब जब भोजन जीर्ण हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद में पानी हमें एनर्जी देता है, बल देता है. देन भोजने चामृतम वारी मतलब भोजन के बीच बीच में अगर हमने घूट घूट ल्यूकवार्म पानी पिया तो वो भी हमारी डाइजेशन में हमें हेल्प करता है. और भोजनांते विषप्रदम मतलब भोजन के एंड में हमने अगर बहुत सारा पानी पिया तो वो फूड को डाइजेस्ट नहीं होने देता और टॉक्सिन्स जो है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और उससे ही कई तरीके के डिसीजेस बनते हैं. तो हमने अगर पानी भी सही टाइम पे पिया और खाना अच्छी तरीके से खाया, एक्सरसाइज रखी, अपनी लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइज रखी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस नहीं लिया,
तो हम इन सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से बच सकते हैं और खुद को अच्छा रख सकते हैं. I think these small things can contribute a lot to our health. Like time पे खाना खाना is like the most difficult thing अभी के लिए लोगों के लिए. So I think this can really help, and water has always been a blessing. So that is so not even a question. Also, we would really like to know any case studies if you have any patients that have successfully been treated by Ayurveda for these diseases. Yes, I would like to share one story of a patient. He is a male, 54 year. वो मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया वो IBS से सफर कर रहे थे. वो 15 टाइम्स पर डे स्टूल के लिए जाते थे, उनको स्टूल पास करना पड़ता था. एवरी टाइम व्हेन ही ओवर थिंग्स, जब भी वो ज्यादा सोचते थे, स्ट्रेस में आते थे, तो उनको तुरंत मोशन जाना पड़ता था. कभी बाहर जा रहे हैं तो पहले उनको लगता था कि मैं पहले मोशन जाके आए. सो ये जो सिम्टम्स लेकर वो मेरे पास आए थे, उनकी स्टूल स्टिकी थी, एब्डोमिनल पेन के साथ, स्पॉन्टमोटिक पेन के साथ आती थी. उनको मैंने उनका प्रॉपर एनालिसिस किया, प्रकृति परीक्षण जो होता है वो किया. उसके बाद में उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको मेडिकेशंस के कॉम्बिनेशंस बनाकर दिए. ग्रेजुअली उनका जो स्टूल पास करने का था वो थोड़ा सा कम हो गया. 10 दिन में ही उनका 7 से 8 पे आ गया, और फिर 1 मंथ पे उनका पूरी की पूरी तरीके से वो हील होते गए. 3-4 बार पे आया, फिर 2 बार पे आया. अभी वो एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ है. उनको भूख भी अच्छी लगती है, स्टूल भी वो 2 ही बार या 1 बार पास करते हैं, एंड एवरी अदर सिम्टम्स हैज सबसाइडेड. That's really great, ma'am. I think थेरेपी लेते लेते जब हम खुद ही थोड़े चेंजेस ला दे अपने लाइफस्टाइल में, खाने में, आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट विल रियली हेल्प अस. सो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, knowing all the insights about the digestive disorders. There are so many things that we learned, and we are really thankful for you for joining us for this podcast. And for the viewers, if you want to consult with the ma'am, we have the link in the caption below. You can directly consult her. Her clinic's name is again Samyak Ayurveda in Airoli, Navi Mumbai.